No government, party. This is a party program. Okay. Party. You saw the draft, right? It is okay. You keep that much. I just had 1 or 2 points. I said. And 2 almost points. Start. নমস্কার কলমকার, আজকে আমরা এই প্রেস মিট কেন দেখেছি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আগামী 23শে আগস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই তিপ্রা মথায়ের পক্ষ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে, মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিতে যাচ্ছি এবং সেই মেমোরেন্ডামের একটাই লক্ষ্য হবে তিপ্রা মথার রাজনৈতিক দাবি, সাংবিধানিক দাবি, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে আমরা একটা স্মারকপত্র মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমরা দেব সেই দিন। এবং রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে প্রতিটি মহকুমা শাসকের মাধ্যমে আমরা সেই স্মারকলিপি দেব। ধর্মনগর থেকে শুরু করে যেখানে আমাদের সংগঠনের লোকেরা রয়েছেন তারা সকাল 11 ঘটিকায় এই স্মারকলিপি প্রদানের আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ওর প্রেস মিট টুমানি মূল লক্ষ্যঙ্কা আগামী 23শে আগস্ট এডিসি দিবস উপলক্ষে চিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি দংনাই আর কর্মসূচিনি বিশিংতে जों महकुमा शासकनि यागो महामान्य राज्यपालनि थानी ग्रेटर तिप्रालेण्डनि दाबि सानि कैसे मेमोरेन्डाम याफारनाय कारण जों सिओ भारतवर्ष एक गणतांत्रिक देश केंद्रीय सरकारनि खरगसा प्रतिनिधि हलो अराजनैतिक प्रतिनिधिहीन मानव निरपेक्ष एकजन प्रतिनिधिहीन मानव भारत सरकार पक्ष থেকে राज्यपाल मत এবং চিনি দাবি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড স্টেটহুডনি দাবি এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও নির্মাণ হয়েছে যার কারণে जों সানানো জন্য ম রাজ্য কোনো ওয়ানসা তিপ্রাসা মুগলিসা ওয়ালাইনি কোনো কক করে তিপ্রাসারনি হাও তিপ্রাসারনি শাসন মাননাই বোবাগ্রানি নেতৃত্বে তিপ্রামথানি কাইসানা এজেন্ডা যে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠন খাইলেন এবং প্রথমবার মহামান্য রাজ্যপাল রেনাই যে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড গঠন মা খাইনি। সো এইটাই আমাদের দাবি থাকবে। অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে এই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডকে নিয়ে ত্রিপুরায় জাতি এবং বহু জাতির মধ্যে তিপ্রাসা ওয়ানসা বা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে কিনা। আমরা বলছি এটা কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি নয়, এটা সাংবিধানিক দাবি। সংবিধানে লেখা আছে যে প্রতিটি রাজ্যেই মাতৃভাষা এবং একটা জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে রাজ্য গঠন হয়। ত্রিপুরাতেও এটা আমাদের রাজ্য ছিল, আমাদের রাষ্ট্র ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র আমরা হারিয়েছি 1949 সালে এবং আমরা রাষ্ট্র চাই না, আমরা রাজ্যই চাইব এখানে যা আমাদের হাতে যেন রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ভারত সরকার দিয়ে দেয়। তার পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ভারতবর্ষের সরকারের কাছে এবং যিনি আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আছেন নিউট্রাল ব্যক্তি উনি রাজ্যপাল, ওনার কাছে আমরা এই দাবির আওয়াজ আমরা তুলব এবং এই দাবি আমরা তুলে দেব ওনার। ধন্যবাদ। এখন আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান আমাদের মহারাজা উনি কয়েকটি কথা বলেন। थैंक यू अनिमेश। मैं यहाँ में मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। मेरे संग मेरे ईएम राजेश त्रिपुरा है
एमडीसी अनंतोदय वर्मा भी है अनिमेश के साथ, हमारे टीडब्ल्यूएफ के वर्किंग प्रेसिडेंट सपना देव वर्मा भी है। मैं मीडिया को और अपने त्रिपुरा के आम जनता को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे तिपरासा लोगों के लिए। ये 23 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने एडीसी के बारे, अपना अस्तित्व के बारे बात करते हैं। और हमें लगा, तिपरामोथा को लगा कि 23 अगस्त में हम हर सब डिवीजन में एसडीएम को, जहाँ में हमारी पार्टी है, वहाँ में हम लोग एक सिंगल कॉमन मेमोरेंडम देंगे विथ अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आप दीजिए। ये मेमोरेंडम थ्रू द गवर्नर विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और थ्रू द एसडीएम्स हम लोग हर एसडीएम के जहाँ में तिपरामोथा का पार्टी है हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ में हम लोग जाकर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, और कोई पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट एजेंडा दैट आर डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बी मेट, ये हम लोग ऑफिशियली करेंगे। उसके बाद सितंबर में हम लोग खुद ऑल द एमडीसीज, ऑल द लीडर्स अगरतला में जाकर राज्यपाल से समय मांगेंगे और उनको वही मेमोरेंडम जो हमारे वॉरियर्स ने एसडीएम ऑफिस में दिया है, वही मेमोरेंडम हम लोग भी साइन करके राज्यपाल को देंगे। टाइम आ चुका है कि हम लोग इधर उधर का बात नहीं करें, अपना फोकस में रहे और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उससे हम लोग हटे नहीं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये एंटी नेशनल डिमांड नहीं है। ये हमारा डिमांड इज फॉर all the people who are living inside the ADC areas and some people who are living outside the ADC area which have been kept out. We do not want any communal disharmony. We do not want any communal or religious conflict. We want development. We want political rights, and we want equal rights for our people, which has not happened in the last 70 years for various reasons. And the government of India is responsible for making a mess out of Tripura, be it whoever was in center, whether it was the Congress, whether it was the Communist, whether it was the BJP. And today we are asking the government of India and not any political party कि ये 70 साल का जो मेस आपने क्रिएट किया है, अब हमारे लोगों को एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए। 23 अगस्त I am appealing to all my Tiparamotha warriors, Burui Bodol, TWF, TEF, जो भी हमारे डिमांड को सपोर्ट करता है, आप इकट्ठा होइए, एसडीएम के ऑफिस में शांति से जाइए और वहाँ में एक कॉमन मेमोरेंडम, एक ही सिंगल पॉइंट कॉमन मेमोरेंडम दीजिए और बोलिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। ये हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, एंड अगर आपका कोई सवाल है, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। बलाई नो हम भाई वो इसी के लिए हमने 23 अगस्त हमने दिन चूज किया है। एडीसी जब हमें मिला था तो एक समय सब लोग ने बोला था, बहुत लीडर ने बोला था, मैं नाम भी लेके बोल सकता हूं, लेकिन वो क्योंकि जिंदा नहीं है मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई बड़े बड़े लीडर थे जिसने अगरतला में बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना, लेकिन हमको एडीसी मिला। आज बहुत लीडर है जो बोलता है त्रिपुरा लैंड होबे ना। मैं इसी के लिए जो लोग ने हमें कहा था कि हमें एडीसी नहीं मिलेगा और हमें आज एडीसी मिला है, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, हम उसी दिन हम जाकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का सिंगल कॉमन मेमोरेंडम अक्रॉस द स्टेट हम जाकर देंगे। इसी के लिए हमने एडीसी डे चुना है। सर कितने बजे आप लोग जैसे नहीं, ये पहले एसडीएम का है कॉमन मेमोरेंडम 11 बजे। गवर्नर के लिए हम लोग सेंट्रल जो लीडर्स हैं
हमारे CM है, EMs है, TWF है, YTF है, हमारे प्रेसिडेंट BK रामखोल है, चेयरमैन साहब जगदीश देव वर्मा है, मैं हूं। हम लोग सितंबर में वही मेमोरेंडम जो पूरे त्रिपुरा में हमारे वॉरियर्स ने दिया है, वही मेमोरेंडम उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में हम जाकर गवर्नर को देंगे। गवर्नर जब समय देगा हम वो उनको देंगे। ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा डिमांड है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करना है कि वो इस डिमांड का क्या करते हैं। ये हम अपना काम कर रहे हैं। Maharaj, the critical focus is also incidentally demanding of Tipraland of a separate party, and they have also announced again. So सेपरेट पार्टी मीन्स IPFT? yes. हाँ So the same is that you have announced, हाँ हाँ and on a similar demand, already a bit different, but statehood demand. हाँ हाँ You have earlier told that anybody who supports statehood, be it Tipraland, they could come together. हाँ हाँ Is there any kind of indication that there is dialogues happening, or will they be joining? सी IPFT साल में एक बार डिमांड करता है तिपरा लैंड। हम लोग 365 दिन वी डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड फॉर 365 डेज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन IPFT एंड तिपरा मोथा। IPFT has kept quiet for 4.5 years. We have been saying since we have come in existence, we have demanded greater Tipra land. After we have come, we have said greater Tipra land. So IPFT can demand in 4 years once. We are demanding every day greater Tipra land. And 23rd को हम IPFT को देख के अपना पॉलिटिक्स नहीं करते। 23rd इंपॉर्टेंट डे है, वो ADC डे है। ADC हमारे लीडर्स ने लेकर आए थे और उस समय भी एवरीबडी हैड सेड कि हम ADC होने नहीं देंगे। रक्त दिवो ADC देवो ना, ये स्लोगन है। आप मीडिया है, यू कैन डू योर होमवर्क। किसने ये बोला था वो जिंदा नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो ऑपोजिशन ADC के लिए हुआ था, आज वही ऑपोजिशन ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए हो रहा है। लेकिन ADC मिला है, ये प्रमाण है, और ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है। Any other question? I think enough, right? So I appeal to all the supporters कि उस दिन आप कोई भी हो, आप तिपरा मोथा से हो, आप IPFT से हो, आप पॉलिटिक्स नहीं भी करते हो, उस दिन ADC डे है। आप लोग इकट्ठा होइए और 11 बजे अपने एरिया में एक संग होकर तिपरा सा बन के जाकर SDM ऑफिस में अपना पावर और अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, क्योंकि ये डिमांड एक पार्टी का नहीं है, ये डिमांड हम सबका है। पार्टी बाद में आता है, डिमांड पहले आता है। तो ये मेरा अपील है सबको जो हमसे अग्री करते हैं कि हमको 70 साल से नीचे रखा गया है। आज ये आपका समय है कि आप अपना पावर दिखाएं। थैंक यू। The ADC election is coming here. विलेज काउंसिल, यस, विलेज काउंसिल। It's coming here, and notification was made for making the necessary announcement. So what is the status of the official process going on? Are you having any new permission from the constitution regarding this thing? And I am hopeful that the government of Tripura abides by the order of the High Court, Honorable High Court. We are ready. We've been ready for 1 year. I don't know what is the problem of the State Election Commission not holding the election. We are ready to fight the village council election, and in the village council election, let me assure all the people of the media that Tipra Motha will show how strong we are on the ground. We are not going to back down. We are going to take this village council election. Village council election is a semi-final. The final will be the assembly election, and we will win the semi-final. We will reach the final, and we will win the final also, God willing. हाँ हाँ बताइए, आप पूछिए ना, क्यों? हाँ हाँ, ना अपने पूछिए। जब भी इलेक्शन आता है तो देखा जाता है कि मिलिटेंट्स का एक्टिविटी बढ़ जाता है, जब भी आते हैं तभी बढ़ जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी इलेक्शन आता है वायलेंस बढ़ता है, ठीक है। ये
सिर्फ यहां में नहीं है। आपको मैं और एक बात बोलता हूं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी इलेक्शंस आता है तो हिंदू मुसलमान भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको रिलीज किया गया। क्या बिल्किस बानो पहला महिला है कि मुसलमान है? उसको रिलीज किया गया। जैसे वो लोग बाहर निकले, जिसने बिल्किस बानो की मां का बलात्कार किया, बिल्किस बानो का बलात्कार किया, बच्चे का बलात्कार किया, मर्डर किया, उनको हाई कोर्ट गुजरात के इलेक्शन के पहले क्यों रिलीज करते हैं? ये क्या पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है? आप हमें पूछ रहे हैं कि मिलिटेंसी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये पूरा जो चीज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। जब आप रेपिस्ट को रिलीज करते हो इलेक्शन के थोड़े दिन पहले, क्या रेपिस्ट का धर्म देखकर आप रिलीज करते हो या विक्टिम का धर्म देख के आप रिलीज करते हो? ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। और सिविल सोसाइटी को, जब निर्भया का बलात्कार हुआ था, सब लोग उठ गए थे। आज जब रेपिस्ट को खुलेआम रिलीज किया जाता है, ठीक है, उनके परिवार ने उनको वेलकम किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिविल एनजीओज जो देशभक्ति का गाना गाते हैं, वो उनको मिठाई बांट रहे हैं। जिसने रेपिस्ट किया, जिसने मर्डर किया, जिसने बच्चे का रेप किया, जिसने एक मां का रेप किया, आज उनको मिठाई बांटा जाता है, वो भी गुजरात इलेक्शन के थोड़े दिन पहले। वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? मीडिया, आप उसको भी सवाल पूछिए। Regarding this recent, insurgent, it has been told that insurgent ambush on the BSF. Yes. I condemn any act which has killed our honorable Jawan, be it BSF, be it TSR, be it the army, be it CRPF, anybody who is serving the country, and if he has unka shaheed hua hai, I condemn it, and action should be taken against people, whoever it is, for killing a person who is defending the border of his country. We love our country, we support our armed forces, and we have always said, मैं आपको और एक बात बोलता हूं, as I am giving this press conference, मैं थोड़ी देर में फेसबुक पे निकालने वाला हूं। सिमना में आज और कल रात हमारे एमएलए बृषकेतु देबबर्मा और हमारे तिपरा मोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को एप्रीहेंड किया है। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में। अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है। मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे? कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है? वहां से कौन आ रहा है? वो हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है? ड्रग स्मगलर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां से ड्रग्स आया जाता है, जहां से घुसपैठिया आया जाता है? ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सुरक्षित नहीं रखा है। हमारा बाउंड्री को आपने सील भी नहीं किया, और आपने सील नहीं किया तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा देश का हो रहा है और हमारा स्टेट का हो रहा है। शिमला में हुआ है। वी विल पुट अप द वीडियो वेरी सून एज आई स्पीक। अभी जैसा मैं बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो सिमना के पुलिस थाने में है। हमारे एमएलए ने एप्रीहेंड किया है, हमारे तिपरा वॉरियर्स ने एप्रीहेंड किया है, लोकल पीपल ने एप्रीहेंड किया है। आप ये बात मालूम कीजिए कि कैसे आज के दिन 2022 में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं। हाउ आर दे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? आप ये मालूम कीजिए। और अगर नहीं है तो मैं वीडियो भी रिलीज कर देता हूं थोड़ी देर के बाद। माय एमएलए राइट नाउ इज इन द पुलिस स्टेशन। इन लोगों को पकड़ के इनको वापस भेजने के लिए या जेल में रखने के लिए। और सेम इशू में
yesterday, opposition leader Manik Sarkar issued a statement about this attack on BSF हाँ. and death of martyrdom of one of the हाँ. journalists. He mentioned in his statement that there is a section of narrow political interests which are at work, which are being used for the insurgents, and there were communications with certain political people. He hasn't mentioned given any detail. What would you like to comment? He should name the people publicly. अरे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि कौन देशद्रोही है, आप पब्लिकली नेम कीजिए ना. आप पूरा कम्युनिटी को क्यों अटैक? मानिक सरकार का प्रॉब्लम क्या है जानता है? वो नाम नहीं लेता है, लेकिन पूरा कम्युनिटी को अटैक करता है कि वो उग्रपंथी है. अगर मानिक सरकार के पास नाम है तो नाम लेकर बोलो कि ये मिस्टर सोन सो उग्रपंथी के संग कम्युनिकेशन है, लेकिन वो नाम नहीं लेगा, लेकिन पूरा कम्युनिटी को बोलेगा कि ये कम्युनिटी उग्रपंथी का कम्युनिटी है. आज सीपीएम जो ट्राइबल एरियाज में हार रहा है ना, मानिक सरकार के इस पॉलिटिक्स से हार रहा है. और हां, वंस अगेन मेन इश्यू 23 तारीख अगस्त, टिप्रा वॉरियर्स, बुरुई बदल, YTF, हम लोग एक संग एक होकर हम लोग हर SDM ऑफिस में जाकर एक कॉमन मेमोरेंडम देंगे फॉर ग्रेटर टिप्रा लैंड. सिंगल पॉइंट एजेंडा, हम लोग अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एज माय डेप्यूटी CM has said and as all my leaders here are present are saying. Malai Noham bhai.